Ahana, Amartat Ahana. See, when I was an employee, I felt like I was a cab driver. But when I became an employer, I felt like I have suddenly become pilot. Sorry. अगर हम आपकी इंडस्ट्री के बारे में समझे, व्हाट डू यू थिंक इज अ मेजर चैलेंज और थ्रेट? Traditional advertising is always there to stay. चाहे जितना ही डिजिटल में इम्पोर्टेंस आ जाए, चाहे जितना ही डिजिटल में क्यों ना खर्च कर दे क्लाइंट, बट ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग, होर्डिंग्स, इवेंट्स वगैरह वगैरह हमेशा रहेंगे. राइट. एक एम्प्लॉय से लेके एम्प्लॉयर तक का सफर, दूसरे के ब्रांड को नाम देने से लेके अपना एक नाम बनाने तक का सफर, यही जानेंगे आज हम अंकित गारोदिया के साथ फ्रॉम आहाना एड्स एंड आउटडोर्स, हु इज हियर विद अस ऑन द फ्लेमेजिंग फेबल्स. लेट्स वेलकम अंकित गारोदिया टू द शो. हाय अंकित, वेलकम टू द शो. थैंक यू प्राची फॉर हैविंग मी हियर. कैसा लग रहा है आपको? Honestly speaking, I'm having butterflies in my stomach. Wow. I mean, this is the first time I'm giving this podcast, any podcast. So obviously a bit nervous. पर हम जिस अंकित को जानते हैं उसके लिए सब कुछ केक वॉक हो जाता है. फिर he can walk all roads very nicely. नहीं, ऐसा नहीं है. Even I get nervous. ठीक है, तो आपकी नर्वसनेस को दूर करने के लिए आसान सवाल पहले पूछेंगे. Okay. ठीक है? Yeah. जिसके बारे में आप हमेशा हम सबको बताते हो और सबको बताते हो कि आप साइनेजेस का काम करते हो. Right. करेक्ट? Right. तो ये जो साइनेज वाली फील्ड है, ये इंडस्ट्री है, मतलब हाउ डिड दिस हैपन टू यू? अपने आप हुआ, आपने खुद चूज किया? हाउ डिड यू गेट इनटू इट? See, BNI played a very major role in this. Like I'm into advertising since 2009, you can say. Okay. Like after completing my MBA, I always wanted to be in advertising. Like advertising and branding always fascinated me. So मैं हमेशा advertising line में ही आना चाहता था because it's very colorful and creative. And immediately after completing my MBA, like I came to Guwahati and I joined a renowned firm here. But yes, I was more into outdoor advertising. I was never into signages and branding. So मैं outdoor advertising में ही था and gradually until I joined BNI, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं signages को इतनी deeply मैं इस field में enter करूँगा. See, signages is again a totally different field of advertising. Right, yes. Okay. So मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसमें venture करूँगा. But BNI happened and I saw this opportunity कि yes, यहाँ पे अगर मैं signage category में join करूँ तो this might add another feather in my cap. तो मैंने BNI join किया in this category and the first work in BNI which I did, that was totally cost to cost. Okay. ठीक है, मैंने उसमें ज़्यादा कुछ रखा भी नहीं. And but that was just the beginning because मेरे को पता था कि अगर मैं अच्छे से करूँगा and everything तो gradually things will follow. And वो दिन है और आज का दिन है, it's been almost 4.5 years. I have made more than 50 signages of BNI and their references. So I will thank BNI for this wholly and solely, if you say. तो कहते हैं कि साइनेज puts down the first impression of your business organization. Exactly. है ना? आज हम कुछ भी करें, वो बाहर से कैसा दिख रहा है वो सबसे पहले मैटर करता है. Right. और बहुत बिजनेस हाउसेस उस चीज को शायद वर्कआउट ही नहीं करते अच्छे से. Exactly. So उसमें आपका क्या कहना होगा? What should a business person do first for this? See, I'll say a signage is the first handshake. You know? Okay, right, yes. Right. A customer, when he comes to your shop, the first thing that he notices is how beautiful your signage is. It's the first handshake with the customer. It's Correct. the first impression before the actual owner meets the customer. So a signage should always be very inviting. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये signage लगा हुआ है, it's very dull and everything. See, we always have two parts in our mind. Yes and no. Yes. ठीक है. तो अगर एक कोई भी बंदा जा रहा है कोई भी शॉपिंग करने के लिए या फिर कोई भी शोरूम वगैरह जा रहा है, तो अगर एक साइनेज उसको दिखा कि यार इसका साइनेज बहुत ब्राइट एंड बहुत अच्छा है,
तो वो डायरेक्टली उसके यस माइंड में अफेक्ट करता है। और वहीं अगर कुछ वो डल सा रहता है, ये रहता है, तो उसको ये लगता है यार इसका तो एंट्रेंस ही एकदम डल है, राइट। तो दैट अफेक्ट्स हिज नो माइंड एंड उसका वो नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाता है, करेक्ट, यस। राइट। तो ये तो साइनेज प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी शोरूम और एनी शॉप और एनीथिंग। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी साइनेज बनाता है या जो भी शोरूम नया आता है जो उनको साइनेज बनाना होता है, सो दे शुड पुट मैक्सिमम एफर्ट इन मेकिंग ए साइनेज। इट्स नॉट लाइक कि खाली नाम लगाना है बोल के लगा दिया कि हाँ मेरा ये नाम है शोरूम का, ये लगा दो। देयर शुड बी ए प्रॉपर स्टडी इनटू इट कि आपको कौन सा मटेरियल यूज करना है, आपको कैसा फॉन्ट यूज करना है। अभी आप एक स्कूल का साइनेज बना रहे हो और आपने फॉन्ट ऐसा यूज कर दिया एकदम जिगजैग टाइप का फॉन्ट, so that doesn't go with the school. करेक्ट। Likewise, अगर आप एक क्लब का फॉन्ट साइनेज बना रहे हो और आपने एक नॉर्मल सा फॉन्ट यूज कर लिया, so it doesn't go with the image of the club. राइट। So a signage should always replicate, what you are, what is your brand. Right. It should speak your brand. Other than this signage, you're also into some event production and all of it. Right. जो आप अलग अलग corporate houses के लिए you're taking care of a lot of other things other than advertising. So tell us about that part of journey of yours. Event line is very challenging. At the same time, it's very enterprising and a lot to learn. वहाँ पे ऐसा भी होता है कि कभी कभी मुझे सुबह 5 बजे भी जाना पड़ता है क्लाइंट साइड पे, कभी कभी रात भर जग के भी काम करना पड़ता है, राइट। Right. It's taxing, I'm not saying that. It's definitely taxing, but at the end, you are the winner. You come Right. out, as a good learner. You learn many things in चाहे छोटा हो या बड़ा event. So you can say it's like the adrenaline rush for me, and Right. it gives me kick. Wow, very nice. Yeah. तो अगर हम अंकित के बारे में समझे तो signages, events, advertising. These are three things. इसके अलावा is there any product more that you do? आपका कुछ और business line में? Business line में देखिए, advertising itself is a very vast field. You cannot just limit it to signages and events and outdoors. There are other mediums of promotion activities also that we keep on day to day, life for our clients. So yes, we do it as per our client requirement. We provide a single small solution of rupees 100 to rupees, as many as the client wants. Got it. Yeah. It. Very nice. So Ankit, just a curious question. Yes. कि आपने भी अपने फर्म का नाम मेंशन किया, अहाना एड्स एंड आउटडोर्स. So how does this name अहाना का मतलब इसका क्या इंस्पिरेशन है? Because it has three beautiful meaning. The first is Ahana means the first ray of the sun. Second is something which cannot be defeated. And the third one is the name of goddess Saraswati. Wow. Okay. So ये जब हमने देखा तो we all मतलब एक ही बार में हमें स्ट्राइक किया कि no, we will go with this name. And also अगर आप देखो तो असमीज में आहाना मतलब क्या होता है? आहाना, प्लीज कम. Please come, right? तो वो yes. भी एक बैक ऑफ द माइंड था हमारे कि चलो जोकिंगली सही आहाना, अमरतात आहाना, राइट. सो दिस वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस नेम. Very nice. Yeah. Very nice. So Ankit, as much as I know you, you have also have worked with some people as an employee. You've gained some experience and learnings from there. Right. So from an employee to an employer today, leading a team of people. आज आपको 12-13 साल हो गए इस इंडस्ट्री में as an employer. Right. So this journey must have been amazing. Amazing. Right. Yes, yes. So what are your major learnings and how do you feel about it? See, when I was an employee, I felt like I was a cab driver. Okay. With limited access, खाली मेरे को आगे दिख रहा था and all this stuff. But when I became an employer, I felt like I have suddenly become pilot. Sorry. And the entire horizon is, in front of my eyes. I can see the entire world, and I can see the vast opportunity this world has. Right. So ये एक चेंज था. एंड डेफिनेटली सी व्हेन यू आर एन एम्प्लॉय, आप एक एम्प्लॉय की तरह से सोचते हो, ठीक है मुझे सुबह 9 से 5 जाना है, मेरा ये काम है, मुझे ये करना है, एंड दैट्स इट. व्हेन यू बिकम एन एम्प्लॉयर,
द रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रोज मैनी फोल्ड. ट्रू. ठीक है, क्योंकि आपको अपने टीम के लिए भी देखना पड़ता है कि मेरा टीम कैसा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं. वी हैव टू सी कि एवरीवन इज हैप्पी, क्योंकि अगर वो हैप्पी नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली वो काम कैसे करेंगे आपके लिए. देन देयर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन यू. अल्टीमेटली इट्स योर फर्म, राइट? इट्स योर बेबी, सो यू हैव टू सी इट ग्रो. राइट. आपके एम्प्लॉयज़ को आप चलो जितना भी आप, नो डाउट माई एम्प्लॉयज़ आर वेरी गुड, टच वुड, बट एट द एंड ऑफ द डे वो भी उतना ही करेंगे जितना उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल में आता है, राइट? करेक्ट. करेक्ट. अगर आपको ग्रो करना है तो वो आपके ऊपर है कि आप किस हद तक जा सकते हो. तो एक वो चैलेंज है बीइंग एन एम्प्लॉयर, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, कि आपको अपना फर्म को ग्रो भी करना है, साथ में आपको सब कुछ देखना है. एंड मेजर challenges come when obviously this is not hidden from any one of us. पेमेंट्स को लेके काफ़ी वो होता है. Yes, तो हाउ टू yes. मैनेज द फिनांस पार्ट, दैट इज ऑल्सो अ वेरी चैलेंजिंग थिंग एंड लर्निंग थिंग, कि आप कैसे फिनांस को मैनेज करते हो. यू हैव सपोज से यू हैव 100 रुपीज, नाउ यू हैव टू पे सो मेनी पीपल, राइट. सो हाउ यू डू दैट. उसमें भी आपको हर एक वेंडर्स से बात करके उनके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है. करेक्ट. कि आपको फ्यूचर में भी काम है तो आपको सबको खुश रखना पड़ता है. नो, दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉयर, यस. 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 right? So these are major challenges that that comes in everyday life. But then again, see, without challenge there is no life, करेक्ट. right? Life is all about learning every day. So yes, being an employer, I'm really at a happy state, I'll say, and I keep on learning every day, every new thing. कभी किसी के साथ झगड़ा भी होता है, कभी किसी को गुस्सा आता है कि इसको कुछ बोल दे, बट देन अगेन बैक ऑफ द माइंड ऐसा रहता है कि नहीं अंकित, कंट्रोल, इसके साथ तुम्हें काम करना है. ठीक है, कोई बात नहीं, इस काम में लॉस हो गया, यू कैन मेक इट अप, बट डोंट फाइट. राइट. सो वो एक पेशेंस जो बोलते हैं ना, बीइंग एन एम्प्लॉयर टीचेस यू हाउ टू बी पेशेंट. Right. So there are a lot of learnings, in this path, I'll say. Very nice. So it has actually groomed you as a person. Exactly, it has altogether. groomed me as a person, like what I was 10 years back and what I am now. So I'm much more confident now. I'm much more matured. I'm much more patient, and I've become much more responsible. So Right. and this somehow also, impacts your personal life. Correct. Yes. राइट. yes. एंड जितना आप मेच्योरिटी से ग्रो करेंगे उतना ही आपका पर्सनल लाइफ भी अफेक्ट होगा. अगर हम आपकी इंडस्ट्री के बारे में समझे, व्हाट डू यू थिंक इज अ मेजर चैलेंज और थ्रेट टू योर इंडस्ट्री एज अ होल या टू योर वर्क एज अ होल? बिकॉज मतलब विद एडवर्टाइजिंग बीइंग सो इजी दीज डेज, विद डिजिटलाइजेशन कमिंग इन, लोग कैनवा कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पे एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, आउटडोर पे आजकल लोग ज्यादा इतना खर्च नहीं करना चाह रहे हैं. सो उसको आप कैसे हैंडल करते हो? व्हाट डू यू थिंक, मतलब इज इट अ कंपटीशन और डू यू थिंक दोनों हैंड इन हैंड एज बैलेंस चलना नहीं, चाहिए? आई विल नॉट से इट्स अ कंपटीशन. सी, डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट. ऑब्वियसली कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा हो गया है, करेक्ट. बट ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग इज ऑलवेज देयर टू स्टे. चाहे जितना ही डिजिटल में इम्पोर्टेंस आ जाए, चाहे जितना ही डिजिटल में क्यों ना खर्च कर दे क्लाइंट, बट ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग, होर्डिंग्स, इवेंट्स वगैरह वगैरह हमेशा रहेंगे. राइट. एंड गुवाहाटी बीइंग ए ग्रोइंग सिटी, आई विल से, गुवाहाटी में अभी भी सिर्फ 20% लोग ही हैं जिन्होंने साइनेज का इम्पोर्टेंस समझ पाया है. अभी भी देयर इज अ वास्ट स्केल ऑफ पीपल हु आर येट टू गेट इनटू दिस साइनेज, इम्पोर्टेंस ऑफ साइनेज. धीरे धीरे अब लोग समझ रहे हैं साइनेज का क्या इम्पोर्टेंस है. धीरे धीरे लोग अपना फेसिया अब ल्यूक्रेटिव बना रहे हैं, डेकोरेटिव कर रहे हैं विद साइनेजेस. ठीक है, तो यस, डिजिटल डू प्ले, बट डिजिटल पूरा होल एंड सोल आने में अभी बहुत टाइम है. एंड ट्रेडिशनल is there to stay and will stay, and advertising is something which will never go out of fashion, because आपको कुछ भी हो, आपको एडवर्टाइज जैसे कहते हैं, जो दिखता है वो बिकता है. राइट. यस. राइट. एंड देयर आर सर्टेन पॉकेट्स इन द रूरल एरियाज, यू कैन से रूरल बेल्ट, जहाँ पे डिजिटल एडवर्टाइजिंग इतना इफेक्टिव नहीं है. वहाँ पे लोग को ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के मोड से ही समझ में आता है लोग कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है,
कितनी बार गली नुक्कड़ प्ले होता है, कितनी बार थिएटर होता है, थिएटर में एडवर्टाइज होता है, ये सब. तो देयर आर मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग. सो बोथ ऑफ देम कम्प्लीमेंट ईच अदर. आई विल नॉट से कि देयर इज अ कंपटीशन. Yes, so both complement each other and both are there to stay. Very nice, very nice. So you are a businessman, and I think your brother, आपके बड़े भाई है वो? Yes, yes. He's He's a a elder doctor. brother and he's a doctor. He's a professional. Professional. So आप दोनों के lives में, discipline में और हर तरीके में बहुत difference तो बहुत difference होगा. बहुत difference. So मतलब what कभी आपको ऐसा लगता है कि काश यार मैं भी एक डॉक्टर जैसा एक प्रोफेशनल होता? आपको एक बात बताता हूँ मैं. When I was in school, मेरे को उनसे हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे. I was like more studious and स्कूल में भी लोग मतलब टीचर्स जो भी थे, they also felt कि मैं इनसे भी आगे जाऊंगा. And my aim in life in the school was to become a doctor, to be very honest. And I also always wanted to pursue science. बट वो होता है ना कि ठीक है, बट मैट्रिक का रिजल्ट आया एंड आई डिड नॉट डू वेल. जितना एक्सपेक्टेशन था अच्छा नहीं हुआ. तो फिर आई केम हियर इन गुवाहाटी फॉर फर्दर एजुकेशन. आई ट्राइड टू गेट इनटू सम साइंस स्कूल, गुड कॉलेज. सो आई कुड नॉट गेट थ्रू. सो ऑन माय ब्रदर्स एडवाइस ओनली आई टुक कॉमर्स. He said कि since अब तुमको अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, so don't worry, get into commerce. तो फिर मैं this is how commerce happened to me. This was not my first choice. Okay. So अब जैसे कॉमर्स हो गया, तो अब जैसे ही मैंने कॉमर्स लिया तो मेरा एम इन लाइफ चेंज हो गया. देन आई वांटेड टू डू MBA. तो TDC सेकेंड ईयर आई वांटेड टू गो टू दिल्ली फॉर MBA प्रिपरेशन. तो अब मैं कभी बाहर गया हुआ नहीं हूँ अकेले. ठीक है, तो मैं भैया के पास गया, तो भैया ने बोला जाओ बाहर जाओ, अकेले जाओ, क्या है दुनिया में, अकेले आए थे, अकेले सीखना होगा तुम्हें. राइट. यस. नहीं जाओगे तो सीखोगे कैसे. एंड ही पुश्ड मी इन दैट टोटली डिफरेंट वर्ल्ड. अकेले गया दिल्ली, ना कुछ किसी को जानता था, ना कहीं पे कुछ पता नहीं था. डरा हुआ भी था कि कैसे होगा क्या होगा. somehow I managed. ठीक है, वहाँ एक रूम लिया एंड एवरीथिंग, थैंक्स टू माय ब्रदर हु पुश्ड मी इनटू दिस. तो माय ब्रदर फ्रॉम डे वन ही इज वेरी सॉर्टेड. ठीक है, वो शुरू से ही इज अ वेरी सॉर्टेड गाय इन आवर फैमिली. ही इज वेरी फोकस्ड गाय इन आवर फैमिली. मैं इतना सॉर्टेड नहीं हूँ. ठीक है, मैं बहुत उतल पुतल, मेरे दिमाग में बहुत उतल पुतल चलते रहता है कि ये कैसे. बट ही इज वेरी फोकस्ड, ही इज वेरी सॉर्टेड. उसको पता है कि उसको क्या करना है. Like he did his MBBS and then he went to Mumbai. पहले वो यहीं डिब्रूगढ़ में था. फिर उसका एम इन लाइफ था कि ठीक है, मैं इससे आगे जाऊंगा मुंबई. He went to Mumbai. फिर वहां पे भी उन्होंने कहा, उनका एक फोकस था कि नहीं, अब मुंबई में मेरे को 3-4 साल काम करना है, then I want to move abroad. So now he is very well settled in Singapore. He is into medical research heading the medical research team in Johnson & Johnson. Wow, very nice. तो उनका एक थॉट प्रोसेस है, वो फोकस्ड है, उनको पता है कि उनको क्या करना है आगे. एंड इज सो वेरी स्ट्रक्चर्ड. एंड अगर आप मेरे को बोलोगे तो मैं इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं हूँ. सो a lot of time I take inspiration from him only. अगर मैं कहीं फंस भी जाता हूँ तो मैं उनको पूछता हूँ कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा. So you can say he is a pillar of strength for me. और वो है तो मेरे को डर नहीं लगता है कि I always feel कि there is someone who is looking upon me, and even if I falter and I fall down, he will pick me up. He'll pick you up, right? Yes. So that makes me more stronger. That makes me कि मैं और ज्यादा रिस्क ले सकूं लाइफ में, कि हाँ कोई है मेरे को संभालने के लिए, तो डजंट मैटर. सो यस, ही प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय लाइफ. एंड आई थिंक इसी वजह से शायद आपने अपनी लाइफ में वो एंटरप्रेन्योर जर्नी भी स्टार्ट कर सके हो आप, एंड यू हैव बीन एबल टू डू थिंग्स व्हिच यू नेवर थॉट ऑफ डूइंग. एग्जैक्टली राइट. So see, you always need to have a support, and I'm really blessed कि I have a supportive brother like him. Right. I'm really blessed. I mean, to be very honest, this is coming from my heart directly. Very nice, very nice. जब हम लोग सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो हमारी लाइफ में जो हमारा लाइफ पार्टनर होता है उसका भी बहुत
हेल्प रहता है. एंड यू बीइंग इन द एंटरप्रेन्योर जर्नी, तो आपने देखा अप्स डाउन ये सब हमेशा रहते हैं. मतलब वो राइट. एक तो कहते हैं क्या, रिस्क है तो इश्क है टाइप्स वैसी जर्नी रहती है. तो हाउ हैज दैट सपोर्ट बीन इन योर लाइफ, फ्रॉम योर वाइफ, फ्रॉम योर फैमिली एज अ होल? See, Chayan, my wife, obviously she is a very supportive lady, in my life, and I'm really blessed कि वो मेरी लाइफ में आई. तो वो मेरा एक हैप्पी क्वेश्चन है. हम्म. और जब भी मेरे को कुछ भी फ्रस्ट्रेशन होता है या फिर ऑब्वियसली बीइंग एन एम्प्लॉयर तो आपको होता है, हाँ, कितनी होता है, बार राइट. होता है, यस, राइट. यस, यस. शी अंडरस्टैंड्स इट वेरी वेल एंड शी गिव्स मी वेरी गुड सोल्यूशन, हम्म. कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो. कभी भी मुझे कुछ भी कहीं पे भी डिफिकल्टी होती है, कहीं पे भी मैं कुछ प्रॉब्लम में फंसता हूँ तो आई टॉक टू हर कि हम्म. ऐसा ऐसा है, ये है. तो वो मुझे सोल्यूशन देती है एंड मोर और हम्म. लेस वो सोल्यूशन हमेशा परफेक्ट ही होता है. हम्म. सो इन दैट रिगार्ड आई एम रियली ब्लेस्ड एंड शी इज ऑलवेज बाय माई साइड. ठीक है, हम कभी कभी झगड़ा भी कर लेते हैं बट उस झगड़े के बीच में भी कभी भी मेरा कुछ करियर को लेके या कुछ वो होता है तो एवरीथिंग इज असाइड, माई करियर इज वन थिंग. तो वो हमेशा मुझे पुश करती है कि यस यू शुड डू दिस, यू शुड गो Right. फॉर दिस. कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ ऐसा डिमांड कर ले कि उसको भी पता है कि अभी क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है एंड एवरीथिंग. सो शी ऑलवेज वर्क्स अकॉर्डिंग टू दैट. सो शी इज नेवर ऑफ द गार्ड और नेवर कि ये चाहिए वो चाहिए, कभी भी नहीं. कभी शी इज वेरी काम पर्सन and have always helped me in my journey. It's been almost 11 years, Wow. and yes, with every passing year we have started understanding each other more and more. And we मतलब एक दूसरे के साथ हमारा बॉन्डिंग और अच्छा, हर साल हर दिन अच्छा ही मतलब अच्छा जा रहा है. तो yes, she is also one of the pillar of strength for me. And yeah, Very nice. So she keeps you grounded. she keeps me grounded. She keeps me, I'll not yes, grounded is one thing. She is also the one who shows me the sky Wow. and pushes me to touch it. सो अंकित के बारे में हम एक और चीज़ जानते हैं कि अंकित एक बहुत ही एफिशिएंट मल्टीटास्कर है. वो सोशलाइज भी बहुत अच्छे से करता है, वो नेटवर्किंग अच्छे से करता है, वो बिजनेस अच्छे से कर रहा है. सो ये जो मल्टीटास्किंग का आपके अंदर ये जो परफेक्ट स्किल है जिसको आपने बहुत सुंदर से मास्टर किया है, व्हाट इज योर मंत्रा? आप कैसे हर चीज़ के लिए टाइम मैनेज करते हो, या हाउ डू यू जस्ट मेक इट हैपन जस्ट लाइक अ फ्लो See, वाटर? it comes naturally to me. मतलब मुझे इसमें कुछ एफर्ट डालना नहीं पड़ता है. ओके. I like meeting people. I like talking to them. I like socializing. ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, इतना ही टाइम ही नहीं है. बट मेरे को पता नहीं, मेरे को ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मेरे पास टाइम नहीं है या फिर मैं यहाँ जाऊंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. आई जस्ट लव मीटिंग पीपल, आई जस्ट लव टॉकिंग टू देम. सो इट कम्स नेचुरली टू मी. सी एवरीवन हैज 24 आवर्स इन ए डे, किसी के पास ज़्यादा नहीं है. सो इट्स हाउ यू मैनेज दैट. राइट. 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 तो वो एक मैनेजमेंट भी ऑफ कोर्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपको देखना पड़ता है कि आपके प्रायोरिटीज क्या क्या हैं. बट वो एक चीज़ है. बट अगेन एज ए सेड कि मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है एंड उनके साथ बॉन्डिंग बनाना अच्छा लगता है. ठीक है ना. तो दिस इज व्हाट कीप्स मी गोइंग. आई डोंट नो वेदर आई एम ए मल्टीटास्कर और नॉट, बट थैंक्स फॉर saying this. But yes, I like meeting people, I like mingling with them, I like talking to them, and I like making friends. I like gelling up with people. So this is me. सो अंकित का एक कवि वाला साइड भी है जो हमने कभी कभी फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब में देखा है. Right. सो यू आर फॉन्ड ऑफ राइटिंग, रिसाइटिंग, और ये शौक कैसे? मतलब आई हैव अंडरस्टूड ऑल दिस वाइल कि आप एक क्रिएटिव इंस्टिंक्ट आपके अंदर बहुत स्ट्रांग है, एंड फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, साइनेजेस, इवेंट्स, एंड ये वाला एक अनकन्वेंशनल साइड ऑफ क्रिएटिविटी. हाउ डज दिस हैपन एंड व्हाट इंस्पायर्स यू? If I say about poetries that I do, I know it's very close to my heart. ओके. अगर आपने मेरी पोइट्रीज सुनी होगी या फिर कभी नोटिस की होगी,
So they are more about everyday issues that we face in life. आपने आप देखना कि मैंने एक लिखा था अस्पताल हो आना, उसके कुछ 2 लाइन ऐसे थे कि अगर तुम देखना चाहो जिंदगी कितनी बेबस और कितनी लाचार हो सकती है तो अस्पताल हो आना, वहां मिलेंगे तुम्हें कुछ ऐसे लोग जिनका शायद वो बिल्डिंग ही रहा होगा पिछले कई दिनों से ठिकाना। अस्पताल के बारे में लिखा था कि अस्पताल की लाइफ कैसी चलती है, उसके अंदर के लोग कैसे होते हैं। एक मैंने लिखा था जस्ट अ थॉट केम टू, आई वाज जस्ट सिटिंग, तो मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी। तो मैं वहाँ था, तो मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो मतलब ही वाज डूइंग सम वर्क एंड एवरीथिंग, तो उसके चेहरे पे टेंशन सी दिखी मेरे को। तो उससे मेरे को इंस्पिरेशन मिली कि अबाउट लाइफ ऑफ ऑफ ए बॉय फ्रॉम द एज एट 35 to 40, तब उसको क्या करना पड़ता है कि जैसे उसको उसके मम्मी पापा उसके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनको भी संभालना पड़ता है। वो खुद शादीशुदा होता है, उसके बच्चे बड़े होने लगते हैं, 6-7 साल के बच्चे होने लगते हैं, तो उसको अपनी फैमिली भी देखनी पड़ती है, उसको अपना घर भी चलाना पड़ता है। राइट। तो वो सब मिक्स करके मैंने एक पोएट्री लिखी थी। तो ऐसा नहीं है कि मुझे पोएट्री के लिए मुझे बहुत सोचना पड़ता है, कुछ नहीं। मुझे अपने जो किरदार है वो मुझे इर्द गिर्द ही मिल जाते हैं। मुझे जो इंस्पिरेशन है वो मेरे इर्द गिर्द ही मिल जाते हैं मेरे को, और बस कभी मिल जाते हैं तो मैं लिख लेता हूँ। तो दिस इज व्हाट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम माय हार्ट। Very nice. So are we going to see the book by Ankit Garodia full of poems and compositions? I don't know whether we will go to see it or not, कि मैंने कभी सोचा नहीं है ऐसे, क्योंकि मैं बस लिखता हूँ जब मेरे को फील होता है कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, या फिर मुझे ये टॉपिक है उसके बारे में मुझे लिखना चाहिए। यू नो there are so many things that people want to speak but they cannot speak. I just want to be their voice कि हाँ ये सोचते हैं लोग, ये सोच सकते हैं लोग कि बस बोल नहीं पाते, तो मैं बस वो बोल देना चाहता हूँ कि हाँ ऐसा भी होता है। एंड कई बार मेरे पास फ़ोन आए, जैसे यही वाला जो पोइट्री मैंने बोला कि जब एक लड़का होता 35 का, तो इसको बहुत सराहना मिली। एंड मेरे पास कितने सारे फ़ोन भी आए कि तुमने हमारे दिल की बात छू ली। एक्चुअली ऐसा होता है, हम बोल नहीं पाते लेकिन तुमने हमारी बात लोगों के सामने बोल दी। सो थैंक यू सो मच। राइट। सो हमने पिछले 10 साल पुराने अंकित से तो हमारी अच्छी खासी मुलाकात हो गई। अगर हम अब आने वाले अंकित से मिलना चाहे जो अगले 10 साल में अपने लिए क्या प्लान करता है, क्या विजुअलाइज करता है, सो वो अंकित कैसा होगा? देखो प्राची, मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग वैसा कुछ सोचा नहीं है कि 10 साल बाद मैं ऐसा होऊंगा वैसा होऊंगा, मुझे यहाँ होना है, मुझे वहाँ होना है। बस मैं यही चाहूँगा कि मैं आगे भी यही काम करते रहूँ, अच्छा काम करते रहूँ, लोग मेरे काम को सराहना करें, एंड हेल्थ अच्छा रहे, क्योंकि हेल्थ अगर अच्छा नहीं हो तो ऑब्वियसली आप कहीं भी पहुंच जाओ, यू विल नेवर बी हैप्पी। तो मैं बस एक हैप्पी गो लकी लाइफ जीना चाहता हूँ, ठीक है, 10 years डाउन द लाइन। ऑफ कोर्स लाइक कुछ हैं सपने, जैसे कि ऑब्वियसली अपने फॉर्म को और बड़ा करना एंड ऑल दिस स्टफ, तो वो तो है ही। बट yes, 10 years down the line I just want to keep working as I am doing it today, and keep mentoring more and more young people to get into this line of work, and so let's see कहाँ पहुँचते हैं हम 10 साल बाद। वाओ, वेरी नाइस। इतने दिन आप अपने घर पे छोटे थे, पहले पापा फिर बड़े भैया फिर आप, अब आपके घर में एक और छोटा सा शैतान है, राइट? योर क्यूट सन। being a dad to a son is more of a responsibility, very right? much You have to be his friend, you have to be the father figure, you have to be everything. So अगर आपसे मैं ऐसा पूछूं कि आप अपने बेटे को ऐसी क्या एक सीख देना चाहोगे जो जिंदगी भर अपने साथ रखे, what would that be? तो rightly said, being a father is a very big responsibility. जैसे मैंने बोला, जैसे एक बच्चा जब छोटा होता है तो ऑब्वियसली वो अपना माँ का लाडला होता है या लाडली होती है, बट ग्रेजुअली जब वो 8-9 साल का होने लगता है तब वो अपने पिता को फॉलो करता है,
अपने Correct. पापा को देखता है, अपने पापा से सीखता है कि उसके पापा किस तरह से सोसाइटी में बिहेव कर रहे हैं, अपने घर में कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम्म ठीक है, वो उनसे काफ़ी कुछ पिक करता है. हम्म सो यस, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड जो सीख मैं अपने बेटे को देना चाहूँगा, ऑब्वियसली फर्स्ट इज ऑलवेज बी ग्राउंडेड. कभी ज़िंदगी में घमंड मत करना. ऑलवेज हैव योर रूट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. ए ट्री इज स्ट्रॉन्ग ओनली इफ इट्स रूट्स आर स्ट्रॉन्ग, राइट. तो अपने रूट्स को कभी मत छोड़ना, हमेशा अपने रूट्स में लगे रहना. कुछ भी काम करो, अपने बेसिक्स को हमेशा स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आप चाहे जितनी बार गिरो, आप हमेशा खड़े हो जाएंगे. ठीक Very है. nice. ऑलवेज बी ऑनेस्ट इन योर लाइफ. कभी भी किसी के साथ मतलब ऑनेस्टली कभी भी डील करो तो ऑनेस्टली हमेशा डील करना. सो these are few things definitely that I would like to tell to my son. Very nice. The fact that you say that उसको हमेशा grounded रहना चाहिए ताकि Right. वो उस काबिल बने कि कल को गिर भी जाए तो वापस अपने आप को खड़ा कर सके. ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो हम सब आज शायद यहाँ से लेकर जा सकते हैं. With this, Ankit, I would like to move ahead with the rapid fire, the Okay. fun round for you. No, So it's it's making me nervous. Like, so it has been any day very amazing आपके बारे में इतना कुछ जानकर. तो एक क्विक रैपिड फायर करेंगे जहाँ पे Okay. आपको शॉर्ट आंसर्स देने हैं, एक वर्ड में, 2 वर्ड में, उस हिसाब से. Okay. ठीक है. So my first question would be, choose one, wife or friends. depends Depends on the situation. on the situation. Okay. Money or power? Money anytime, because money से power अपने आप आ जाएगा. Okay. Money or happiness? Happiness. Happiness. Okay. What makes you happy? There's not एक कोई definite चीज नहीं है, but yes, little things in life, enjoying little things of life makes me happy. Okay. Who is your inspiration? My mother. Okay. Why? See, like ये भी एक स्टोरी है, मतलब बचपन से ये है कि I've always, my mother is an entrepreneur. Okay. Like, ठीक है, तो जब हम छोटे थे तो I have seen her struggles. So I have seen, मतलब बचपन से मैंने देखा है उनको फाइट करते हुए, उनको स्ट्रगल करते हुए, and still not giving up. So now we can get an idea कि कहाँ से वो हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग, Right. मल्टीटास्कर अंकित आ रहे. Superb, yeah, superb. Hats off to auntie. Moving ahead, next question would be, are you a chai person or a coffee person? More of coffee. More of coffee. Okay. Are you a reader or a listener? Listener, you can say. Okay. Which is the latest podcast or maybe episode that you must have seen? I don't listen to podcast, but I do listen to poetries of many people. Okay. मुझे पोइट्री सुनना अच्छा लगता है, शायद अच्छा इसी लगता की वजह से मैं पोइट्री में हूँ. Very nice. Yeah. Very nice. What does your me time look like? कि अगर अंकित फ्री है 1 घंटे के लिए तो वो क्या कर रहा होगा? कभी फोन मचका लेता हूँ, कभी कुछ लिखने की कोशिश कर लेता हूँ, कभी बेटे के साथ खेल लेता हूँ. वही है. Very nice. What is your success mantra? सक्सेस मंत्रा एज सच, कीप डूइंग, कीप लविंग व्हाट यू डू. ठीक है, ऐसा जिंदगी में कुछ वो नहीं है कि ये करने से ही ये मिलेगा. बस आप जो कर रहे हो, गिव योर 100% टू दैट, है ना, तो डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन लाइफ. तो यही है मेरा सक्सेस मंत्रा. मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि मैं कहीं पे भी हूँ या फिर कहीं पे भी जाऊँ या कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, आई गिव माई 100% टू दैट, so that the outcome is always good. Superb. Great, Ankit. It was amazing having you on the show with us. I mean, such deep, beautiful, wonderful insights about you. I'm a fan of your mother. Please tell her. She inspires me already now. I don't know why and how, but it does. And thank you so much for Thank being you. there. Thank and you. hats off.
Thank you, Prachi. Thank you for being such a nice host. Thank you. Thank you so much, everyone, for watching this episode with us. It has been an honor to have him and also all of you to see you till the end, to have you till the end. I hope आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा insights इससे जरूर मिला हो. Please like the video, subscribe to the channel and share this video with anyone who you think this will help. Thank you.